This is Engineer S.C. Sabu. So I am welcoming you all to MKD Education. Today we will discuss about the question and answers of your chapter 3, that is friction of engineering mechanics. Right? So we have collected 11 number of questions which were already came in your council examination. So this is the solution. We will provide you the solution, detailed solution of those questions. Hope you understand. Right? So let's start. So the first question, a body weighing 100 Newton is lying on a rough horizontal plane. What push applied to the body at an angle of 30 degree to the horizontal will be able to just move the body. So take coefficient of friction 0.2. Right? So let's start the question number 1. A body weighing 100 Newton is lying on a rough horizontal plane. We have to find what push applied to the body at an angle of 30 degree to the horizontal will be able to just move the body. Take coefficient of friction 0.2. So first of all, understand the question. What is the question? Question is, what a horizontal floor अछि. This is your horizontal floor. A body is kept at rest position रे body अछि. आमको body का कौन करिवार अछि, move करिवार अछि. We want to move the body. So move हबो केतेबेले जेतेबेले we will apply the force. So एटी force केमिति apply हबो से कहिछि. According to the question, the force is a push. So we will apply a push, and that push is applied at an angle of how much? 30 degree with the horizontal. So suppose if this is the horizontal direction, then this is the push applied P, which is to be found out. So this angle is 30 degree, right? So here I am writing the given values. What are the given value? We have to find the push applied, push P, which is acting at an angle of 30 degree with horizontal. So theta equal to 30 degree. Theta means the push which is applied to the body at an angle of 30 degree with the horizontal. Horizontal eta. So horizontal को 30 degree angle करके force टा apply हबो, push apply हबो, pull नो. Pull माने टाणीबा, push माने ठेलीबा. So we will push the object. आउ एठी weight of the body, it is given weight of the body, let's say W, which is here 100 Newton. So W equal to 100 Newton, right? So these are the given values, weight of the body given, and the push which is applied at an angle of 30 degree is given. Of course, the coefficient of friction mu equal to 0.2, it is also given. Now we have to find the push. So to find the push, आमे बाहर करिया कोन एतिकी दिन हमको जणा अछि. W जणा अछि, P हमको बाहर करिया अछि, थीटा 30 डिग्री जणा अछि. फ्रेंड्स, सो जेतो वेट तळ को आसला, डेफिनेटली जेहेतु बॉडीटा सपोर्ट पाइछि, डेफिनेटली रिएक्शन आसीबो. आ रिएक्शन कोड आसीबो ऑपोजिट टू द रेस्ट्रिक्शन. सो डाउनवर्ड रेस्ट्रिक्शन रहिछि, रिएक्शन ता आसीबो केमिति ना ऊपर आसला. सो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ता अछि हॉरिजॉन्टल, सो रिएक्शन हला वर्टिकल. ताको हम नॉर्मल रिएक्शन को हम कोन लेबुचे, Rn कोन ना नॉर्मल रिएक्शन. ऑलवेज रिमेंबर, हम ठिया आइ जेठी मु एक्शन दोछि डाउनवर्ड फोर्स, वेट ता मोर एक्शन, आ सरफेस देला ग्राउंड देला हमको रिएक्शन. नॉर्मली जेमिति एक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट रिएक्शन. सो जोठी भी बॉडी सपोर्ट पाउ, मोर सपोर्ट पाइछि. सो ये बॉडी हॉरिजॉन्टल फ्लोर रे सपोर्ट पाइछि, सो रिएक्शन आसी गेला नॉर्मल रिएक्शन. ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर रे तमे जिंस पढिछ, how or why the reaction comes and in which direction the reaction will come. So it is a normal reaction. Why normal reaction? काहे कि ना surface को 90 degree अछि, so that's why it is called normal reaction. So friends, a particular case रे if you apply a push, then definitely it will clearly जणा पड़छि body left को move करिवो. So obviously हमें कहि परिया friction कोड रासिबो ना towards right. Always you know laws of friction रे कि जुआडे मोशन रहइबो एक्जेक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन रे कोन रहइबो, फ्रिक्शन रहइबो, राइट? सो दीज आर द फोर्सेस. हमको कोन करिवार अछि ना p रो वैल्यू बाहर करिवार अछि. सो फॉर दैट
मु कौन करी ना p को रिजॉल्व करी सपोज एटा हला हमर डायरेक्शन ऑफ द p ताको मु एक्सटेंड करूची राइट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ p राइट सो नाउ p को हम रिजॉल्व करबा काहे कि ऑलवेज रिमेंबर हमर टोटल जेते फोर्स अछि दीटा डायरेक्शन रा हम नबा गोटी होची फ्रिक्शनल फोर्स रो डायरेक्शन जोटा कि हॉरिजॉन्टल आ गोटे होची नॉर्मल रिएक्शन रो डायरेक्शन जोटा कि वर्टिकल इन दिस पर्टिकुलर केस सो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन भीतर एंगल हैला 90 डिग्री सो p को रिजॉल्व कले p रो दीटा कंपोनेंट गोटी आमे हॉरिजॉन्टल नबा जोटा कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अनदर कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन सो p को देखो हमर एटी देखो p टा एमत अछि सो p को रिजॉल्व करिया माने दीटा कंपोनेंट बाहर करिया सो ऑब्वियसली एटा को क्वाड्रेंट रे लाइक होची थर्ड क्वाड्रेंट रे सो क्लियरली x नेगेटिव आसी गला y भी नेगेटिव आसी गला आ किछि डिस्टर्ब होबार नाही किछि डाउट आसबार नाही सिंपली को क्वाड्रेंट रे अछि देखो सेही हिसाब रे x रो y रो डायरेक्शन यू कैन इजीली गेट सो x नेगेटिव माने नेगेटिव x साइड अछि आ y टा भी नेगेटिव y साइड बिकॉज़ एठी जो पुश रही छी p को क्वाड्रेंट रही छी थर्ड क्वाड्रेंट सो p रा दीटा कंपोनेंट जो रहिला गोटिए मु एटा को रेड इंक रे लिखुची सो दैट यू विल बी एबल टू नो सपोज एटा हला हमर p फोर्स एंड तार दीटा कंपोनेंट p रा दीटा कंपोनेंट गोटे रहिला वर्टिकली डाउनवर्ड गोटे रहिला टुवर्ड्स लेफ्ट मींस x नेगेटिव y आल्सो नेगेटिव देखो एटा 30 डिग्री अछि माने एटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जस्ट ऑपोजिट माने ये एंगल केते हला 30 डिग्री सो एटा जदी p अछि ऑब्वियसली ए कंपोनेंट ता केते हला ना p cos 30 ऑलवेज रिमेंबर एंगल सहित जो कंपोनेंट रहला सेटा कोसाइन सबु बेले एंड अदर विल बी इन टर्म्स ऑफ sin so this is p sin 30 now we got all the forces along the direction of frictional force and normal reaction right so frictional force direction रे कोन फोर्स रहला frictional force direction रहला निजे फ्रिक्शन और p रो कंपोनेंट को कंपोनेंट p cos 30 कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन रे के रहला नॉर्मल रिएक्शन निजे प्लस p रो अदर कंपोनेंट जोटा कि p sin 30 आ वेट तो ऑब्वियसली जो डायरेक्शन में जेमिति पोजीशन रो वेट इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन और ओरिएंटेशन वेट सब बेले यूनिवर्सल डायरेक्शन तार डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड सो तीनटा फोर्स रहला वर्टिकल डायरेक्शन रे दीटा फोर्स रहला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रे आ बॉडी जेहेतु इक्विलिब्रियम रे अछि इक्विलिब्रियम रो तमे जानि छ टोटल फोर्सेस अलोंग x डायरेक्शन 0 बाय एनी डायरेक्शन हम जति काउंट करिबा टोटल फोर्स 0 सो हमर दीटा डायरेक्शन मन रखो से एडिशनल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अछि बट ऑलवेज रिमेंबर कि फोर्स हमें दीटा डायरेक्शन नबा गोटी होची अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जोटा कि पैरेलल टू द प्लेन जेमति थिबो ताकू पैरेलल सेटा गोटे डायरेक्शन और प्लेन को नॉर्मल डायरेक्शन बा 90 डिग्री थिबा डायरेक्शन सो ऑब्वियसली f और n रा डायरेक्शन हमें जदी एठी काउंट करिबा टोटल फोर्सेस अलोंग द फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्शन कोन फोर्स रहला f रहला टुवर्ड्स राइट p cos 30 रहला टुवर्ड्स लेफ्ट सो हमें कोन लिखिबा ना f माइनस p cos 30 इक्वल टू 0 हां कि नहीं और इंप्लाइज ए टू f कोन भरला ना p cos 30 राइट सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 so total force मिल गला along the direction of frictional force now हमें बाहर करबे along the normal reaction direction total forces बा जोटा हमें कुछ एटी वर्टिकल डायरेक्शन 0 हेले हमें कोन पाउचे ना rn जोटा के ऊपर को अछि पॉजिटिव बाकी दीटा तळ को अछि सो नेगेटिव माइनस w माइनस p sin 30 इक्वल टू हमस 0 सो एटू हमर rn वैल्यू केते पाइले ना rn इक्वल टू w प्लस p sin 30 so w value केते ना 100 plus p sin 30 so let's say this is equation 2 so this is a very fundamental method मन रखो सब बेले आमे बाहर करिबा फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू एमती हमर इक्विलिब्रियम इक्वेशन रो तापर f by rn ऑलरेडी तमे पढिछ फ्रिक्शन चैप्टर रे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन कोन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu रो वैल्यू हैला एटा फार्मूला ऑलरेडी पढिछ मन रखो सब बेले mu = f by rn ऑलवेज इट इज रिक्वायर्ड सो mu रो वैल्यू गिवन अछि 0.2 हम के नै आ f रो वैल्यू केते हमें पाइले ना p cos 30 डिवाइडेड बाय rn रो वैल्यू केते पाइले 100 प्लस p sin 30 राइट
सो आपको आम सिंप्लीफाई करबा p रे वैल्यू बाहर करबा सिंप्लीफाई कले दिस इज 0.2 into 100 केते हला 20 प्लस sin 30 वैल्यू केते 1/2 बा 0.5 सो 0.5 into 0.2 केते हला 0.5 into 0.2 so 0.2 into sin 30 1/2 p equal to cos 30 रे वैल्यू केते cos 30 is √3/2 √3/2 p so सिंप्लीफाई कले कैलकुलेटर तुम पाखरे थिबो कैलकुलेटर यूज करके p रे वैल्यू यू कैन गेट एंड p विल बी केते बारे ना 26.1 न्यूटन right so we get after simplification p जोटा कि हमर केते फोर्स पचारची बा पर्टिकुलरली पुश पचारची पुल हेले डिफरेंट हबो हला सो 26.1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कले पुश अप्लाई कले and 30 डिग्री एंगल चेंज हेले भी फोर्स चेंज हबो राइट सो 30 डिग्री एंगल रे हम जदी 26.1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करिबा गोटे ब्लॉक जार वेट हला 100 न्यूटन ताले मूव करबो राइट सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन a body weighing 20 kilonewton resting on a rough horizontal plane can just be moved by a horizontal force of 5 kilonewton. Determine coefficient of friction and total reaction. So first of all we will write the given value. Given value कौन अछि very simple question. आठो simple question नाही पिला माने. So सबुठ simple question एठी body रो weight again मु लेखुची W केते देछि ना 20 kilonewton. According to the question it is given and horizontal force apply हेछि केते ना let's say p मु ताक लेखुची 5 kilonewton एठु क्लियर होबनी फिगर न ड्रा कला पर्यंत सो मु ड्रा करूची फिगर सपोज दिस इज द horizontal plane एठी बॉडी अछि रेस्ट रे आकु मूव करा जाय पारुची बाय एप्लीकेशन ऑफ ए horizontal it is important horizontal force 5 kilonewton आ बॉडी रो वेट रहला w which is here 20 kilonewton right so according to the question this is the figure and now you can visualize कि बॉडी केमते अछि फोर्स केमते अप्लाई होछि हमें बॉडी 5 kilonewton फोर्स जोगु बॉडी मूव करछ हमकु बाहर करिवार अछि कोन we have to find coefficient of friction in particular case रे coefficient of friction केते आउ टोटल रिएक्शन कोन मु तुमको कहूछि सेटा को हमें r लेखुछि total reaction means resultant of frictional force and normal reaction so पिला माने एठी देखो weight तळु रहला माने definitely normal I am using reading so this is your normal reaction direction rn and clearly body right को move करिवो हां कि नै so obviously हमर friction कोड असला left को f so this is the direction of f this is the direction of rn then what is total reaction कोटे अछि कोन ना that is the resultant of f and rn so eta let's say it kala eta हमर r what is r is your total reaction so that is resultant of f and rn clear so here एते simple question देखो कि बॉडी रे इक्विलिब्रियम रे अछि माने टोटल फोर्स रे जणे एपटु टाणुची जणे सेपटु टाणुची दीटा रे समान हेले तो बॉडी रेस्ट रहइबो ना बॉडी रेस्ट रे अछि माने हम कोन लिखबा श्योरली f = 5 and rn equal to w clear so figure ro clearly हम लिख परिबा as the body is in equilibrium total forces along x direction 0 पिला माने एठी x y न कहले भलो कोन कहिबा हमें along the direction of f and rn but luckily एठी f डाला horizontal direction rn डाला vertical direction so कहिले भी किछ असुविधा नै but still always remember f rn कहि परिबा बा parallel to the plane by along the plane कहि परिबा आउ perpendicular to the plane कहि परिबा so total force along x direction 0 होला हम कोन कहिबा f - 5 0 f - 5 गोटे एपटे गोटे सेपटे so f - 5 = 0 or implies f केते हला ना 5 and you know kilonewton unit अछि so this is equation 1 let right so equation 2 को जिबा total force along y direction 0 बा में कोचे rn direction 0 so clearly figure रू rn - 20 rn ऊपर को अछि 20 तळ को अछि so rn - 20 = 0 or implies rn = केते हिला 20 kilonewton
हाँ कि नहीं वेरी सिंपल सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2 केमती बाहर करिया म्यू थ्योरी रे पढाई जी डायरेक्ट फार्मूला f by rn हैला म्यू सो म्यू केते हो ना f by rn f divided by rn सो f केते बारसी 5 rn केते बारसी किलो न्यूटन लिखा दरकार नै कटि जीवो कांस्टेंट हैला rn हैला 20 सो 5 by 20 बा हमें कहि परबा केते 1 by 4 जोटा कि 0.25 राइट सो फर्स्ट हमें न्यू बार करतले एबे बार करबा कोन ना टोटल रिएक्शन फ्रेंड्स मु आरंभ रु कहि छी टोटल रिएक्शन r कोन ना रिजल्टेंट ऑफ f एंड rn सो r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर एंड यू नो f रो वैल्यू केते ऑलरेडी हमें बाहर कर साचे f इक्वल टू 5 स्क्वायर f इक्वल टू 5 so square means 5 square rn हैला 20 so this is 20 square and after calculation you will get total reaction is 20.615 kilo right so these are the answers data question पचारथिला mu रा value 0.25 we get and r equal to जोटा total reaction 20.615 kilo